Friends, a very sweet good morning to all of you, class 12th students. Today I am going to explain your chapter, The Rat Trap. That is taken from the book Fleming. It is very interesting story. I hope that you would take immense interest in this story. The message that is given through this story is the transformation of heart. Hriday Parivartan. The main character of the story is a person who is known as peddler. A person who is vagabond. A person who walks day and night on the road. He begs, and sometime to survive his life, to put his body and soul together, he steals. चोरी भी करता है छोटी मोटी, भीख भी मांगता है, पूरे दिन रात केवल सड़कों पे भागता रहता है. The world has never kind for him. कभी भी दुनिया उसके लिए kind नहीं रही. Whenever he asked for shelter, whenever he asked for food, he was, chased. जब जब किसी से उसने खाना मांगा, जब जब रहने के लिए शरण मांगी, उसको भगा दिया गया. Nobody welcomed him. He was very disappointed from his life and the conduct or behavior done with him by the people. He had an aversion from the human being of mankind. लोगों से नफरत थी, उसे चिढ़ थी कि कभी भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया. पूरे दिन घूमता रहता है, भीख मांगता रहता है और कहीं कहीं जब टाइम हाथ लग जाता है तो छोटी मोटी चोरी भी कर देता है. But by begging and stealing, he was not able to spend his life with sufficient food. इतनी भीख मांगने के बाद भी, चोरियां करने के बाद भी उसका जीवन यापन नहीं हो पा रहा था. So he decided to make rat trap in his free time, leisure time. फुर्सत के क्षणों में उसने सोचा कि जो लगे जो सामान उसको दुकानों से गोदामों से मिल जाता था, उस सामान से उसने चूहेदानी बनाने की सोची. One day, when he was making rat trap from the wire he had got from shop and the godown, suddenly an idea stuck in his mind. एकदम उसके दिमाग में एक आइडिया आया that the entire world is nothing but a rat. बोला पूरी दुनिया कुछ नहीं है, केवल एक चूहेदानी. कहते हैं ना, हर किसी को नशा होता है. I mean to say that everybody is trapped in the lust of money, in the lust of health, wealth, and other things. Whether the person is poor or rich or richest, everybody is trapped in a rat trap. According to the peddler, entire world is rat trap. किसी को everybody wants, money. Everybody wants pleasure, facilities, etc. कोई गरीब है तो उसको थोड़ा और पैसा चाहिए, कोई अमीर है तो उसको ये लालच है कि मैं और अपना पैसा बढ़ा लूं और अपना एम्पायर बढ़ा लूं. It means everybody is selfish. Everybody is in demand of
luxuries. इसी तरह से when peddler thought about the people, he found that the entire world is nothing but a rat. And he got immense pleasure when he thought about it. जब वो सोचता है इसके बारे में कि मैं तो गरीब हूं, ठीक है, मेरे अलावा जो भी अमीर है उसको ये चीज चाहिए, वो अमीर है उसको ये चीज चाहिए, तो इसका मतलब हर कोई लालच से घिरा हुआ। और जैसे ही लालच से, like the rat trap, when the rat is everybody is greedy. When rat enters in the rat trap, in the lust of, in the greed of bread, he does not think that he would be trapped. He sees cheese, butter, bread, pork, and as he enters in the rat trap, he cuts in two pieces. जैसे ही रोटी की लालच में, जैसे ही पोर्क, अ फ्लैश ऑफ पिग, पोर्क होता मांस का टुकड़ा, या पनीर भी लगा देते हैं, आपने देखा होगा रेड ट्रैप में, और जैसे ही उसके लालच में वो जाता है वैसे ही ब्लेड उसके ऊपर गिर जाता है और वो दो भागों में, दो पीसेस में कट जाता है। तो ड्यू टू द ग्रीड ही लॉसेस हिज लाइफ। जस्ट लाइक दिस everybody in the world is in greed. हर कोई लालच में है और हर कोई उस लालच की वजह से रेड ट्रैप में फंसा हुआ है। So the peddler thought about the people and he got immense pleasure that not only he but the entire world is trapped in a red trap, and due to the greed they spoil or lost their lives. जैसे लालच में आते हैं जिंदगी खत्म हो जाती। One day when he was roaming on the road here and there, it became evening, शाम हो गई। He knocked on the door of a hut, एक झोपड़ी के दरवाजे पर उसने नॉक किया। द डोर वॉज ओपन्ड बट द पेडलर डिड नॉट थिंक दैट ही वुड बी वेलकम। उसने नहीं सोचा कि मुझे कोई रुकने के लिए यहां कहेगा, बट ही हम्बली आस्क्ड फॉर द शेल्टर। उसने पूछा क्या मैं आपके यहां आज रुक सकता हूं, मुझे रात हो गई है, भीख मांगते मांगते मुझे शाम हो गई है, क्या आप मुझे अपने यहां रुकने की इजाजत देंगे? एंड ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द क्राफ्टर, द ओनर ऑफ दैट कॉटेज, वेलकम। ही वॉज सरप्राइज्ड। नेवर इन हिज एंटायर लाइफ ही वॉज वेलकम्ड इन एनी हाउस बाय द ओनर ऑफ हाउस। कभी भी किसी भी घर के मालिक ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा था, उसका वेलकम नहीं किया था। He really got surprised and stunned when the crafter of that cottage welcomed him. Not only he welcomed him, he provided him supper. उसने उसको रात का खाना भी दिया। पोरीज, दलिया कह सकते हैं आप, उसको खीर भी कह सकते हैं, वैसे पजासम हलवा वगैरह भी होता है, तो उसको वो खीर देने के लिए या वो फूड के लिए उसने इसको फूड प्रोवाइड किया। नॉट ओनली प्रोवाइडेड हिम फूड, ही ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम अ रोल ऑफ टोबैको। खाना दिया उसको और फिर शाम को, रात को तंबाकू का एक टुकड़ा दिया, जो दोनों के हुक्का जानते हो आप लोग, जो पाइप होता है फॉर स्मोकिंग इट इज यूज्ड, उसके लिए उसने उसको तंबाकू भी दी। And the crafter was very talkative
में जेनरस पर्सन ही बहुत ही सीधा साधा सज्जन आदमी था, बहुत बात करने वाला था। He was living alone in the cottage. अकेला उस कॉटेज में वो रहता था। So he thought it would be better to spend the night with that peddler. उसने कहा आज की रात कम से कम कोई बात करने के लिए तो मुझे मिला। And in night they both played a game, Majoris. कार्ड भी ताश भी खेले रात में दोनों ने। Both were married. When the peddler asked him how he spends his life, कैसे अपनी जिंदगी आप चलाते हैं इस कॉटेज में रहते हुए, कैसे जीवन यापन करते हैं, then the crafter told that he was a crafter in Ranzo iron mill. एक आयरन मिल में पहले ये वर्कर था। उसके बाद जब वो बुजुर्ग हो गया, when he became very old, he left that job. वो नौकरी छोड़ दी उसने। Now it was his bossy cow who helped him to earn income to spend his life. उसने कहा मेरे पास एक गाय है छोटी सी, who gives creamery milk. और वो गाय बहुत क्रीम जैसा दूध देती है और उस दूध को बेचकर वो अपना जीवन यापन करता है। और लास्ट वीक ही उसने he got 30 kroners. क्रोनर इज द करेंसी, जैसे 10 रुपए होते हैं तो 10 क्रोनर्स, 30 रुपीज मीन्स 30 क्रोनर या डॉलर्स, जैसे भी जो करेंसी है वही क्रोनर्स है। He told that he got 30 kroners last week by selling the creamy milk of the cow. Oh my God! Peddler was surprised. 30 kroners? Oh, I can't, believe. उसने मुझे विश्वास नहीं हो सकता। Oh, the crafter took the pouch of kroner and showed it. उसने वो झोला उतारा, उसको 30 क्रोनर दिखा। फंस गया वो किसमें? चूहेदानी में। ड्यू टू द लस्ट ऑफ क्रोनर्स, ड्यू टू द ग्रीड ऑफ क्रोनर, दैट पेडलर थॉट दैट ही वुड स्टील दैट अमाउंट इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह दोनों उठे। क्राफ्टर वेंट टू ड्रॉ द मिल्क ऑफ हिज काउ, वो अपने गैया का दूध निकालने चला गया। पेडलर भी उठ गया उसी सीजन में। He thanked him to provide him shelter and food. He humbly thanked him. उसने कहा आपने मुझे रात बिताने का मौका दिया अपने घर में, मुझे खाना दिया, ऐसा किसी ने मेरे साथ कभी नहीं किया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट सिंस ही वॉज अ थीफ, वो एक चोर था, थोड़ी दूरी पे गया, दोबारा अगेन ही रिटर्न बैक टू द कॉटेज। ही पुट असाइड द पेन ऑफ अ विंडो का शीशा उसने इधर किया, हाथ डाल के ढोला निकाल लिया, एंड ही स्टोलन 30 क्रोनर्स। 30 क्रोनर उसने चुरा लिए उसके पेडलर क्राफ्टर, उसके जिसने उसको खाना और वो दिया था, यानी कि उसकी आदत में चेंज आया नहीं। उसने ये भी लॉयल भी नहीं रहा कि जिसने मुझे खाना दिया, जिसने मुझे रहने के लिए जगह दी, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, उसने चोरी कर ली। And he decided to go through the jungle, not through the highway, because he was afraid of, police. He thought police will be arrested. So he decided to go through the jungle. It was the month of December. There was immense cold. When he entered in the jungle, it was day. But he was lost in jungle. Again and again he was, roaming in the jungle in the same direction. बार बार घूम के एक ही जगह पे आ जाए, and he was lost in jungle. He exhausted. He was tired. He was dying due to hunger. At last, he thought that he was caught into rat trap. अब उसने सोचा कि मैं खुद चूहेदानी में फंस गया हूं। किस लालच में? ड्यू टू द ग्रीड ऑफ 30 क्रोनर्स। ओ माय गॉड, देखो मैं आज खुद फंस गया चूहेदानी में। मैं लोगों के लिए सोचता था कि चूहेदानी में सब फंसे हुए हैं, बड़े बड़े लोग भी। आज मैं खुद फंस गया चूहेदानी में। एंड ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, अनकॉन्शियस होके जमीन पे लगभग गिर गया वो। एज ही टच द ग्राउंड, he heard the sound of hammer. तभी उसे हथौड़े की साउंड सुनाई।
ओ, उसने कहा अरे इसका मतलब देयर माइट बी एनी लोकेलिटी, द पीपल माइट बी देयर, लोग यहाँ हो सकते रह रहे हो, एंड ही एज्यूम दैट इट वाज द हैमर स्टॉक इन आयरन मिल, कोई मिल है वहां पे हथौड़े की है आवाज आ रही। ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दैट साउंड एंड ही फाउंड देयर वाज आयरन, रामजो आयरन मिल, दिस वाज द सेम मिल वेयर द क्राफ्टर यूज्ड टू वर्क। उसी मिल में पहुंच गया जहां पर लोहा, पिग आयरन, जानते आप क्या होता है, कच्चा लोहा, वो पिघलाया जाता था मेल्ट करके, वहां से वो लोहा मार्केट में भेजा जाता था। द प्रोमिनेंट आयरन मास्टर वाज द ओनर ऑफ दैट मिल। व्हेन ही एंटर्ड इन द मिल देयर वाज ब्लैक स्मिथ, उसने पूछा मैं आपके यहाँ रह सकता हूं? ब्लैक स्मिथ डिड नॉट रिप्लाई, उसने मना भी नहीं किया, तो वो वहीं लेट गया और भट्टी के पास उसके कपड़ों से भाप निकल रही थी क्योंकि वो गीला हो गया था जंगल में, एंड ही वाज फीलिंग relief. But now this is the climax of the story. In night, the iron master, the owner of the mill, came to visit के लिए आया वो. He saw that a person was lying on the ground, putting his head under on the iron. एक आयरन की तकिया बना के वो लेटा हुआ था. And he was having his rat trap on his chest. Rat trap भी अपनी जो बेचने के लिए बुलाया था वो चेस्ट पर पेडलर पड़े हुए लेटा हुआ था. Iron master saw him. He thought he was his old comrade, old companion when he was in army. The same mistook in dim light. He thought he was his old friend, used to work in the military when he was there in the service. आयरन मास्टर पहले मिलिट्री में सर्विस करता था, वहीं पर उसका ऐसे ही चेहरे वाला एक दोस्त था, तो उसने सोचा उसका यही दोस्त है कैप्टन बॉन स्टेल. उसने समझा वही कैप्टन है. ओ माय गॉड कैप्टन, यू आर हियर, व्हाट कंडीशन यू हैव मेड योरसेल्फ. क्या हालत आपने बना ली, ये आपकी बियर्ड, लंबी लंबी दाढ़ी, ये कपड़े आपके फटे, टॉर्न क्लॉथ्स. तो ही थॉट हिम हिज ओल्ड कंपेनियन, बट ही वाज द पेडलर, ही वाज थीफ, नॉट कंपेनियन. बट इन डिम लाइट ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम वेल, उसको पहचान नहीं पाया. He requested him to come to his house. उसने कहा, आयरन मास्टर ने, I am living with my elder sister, no elder daughter, Adla Wilminson. मेरी बड़ी लड़की मेरे साथ रहती है. My sons are abroad. ठीक है, मेरे लड़के बाहर रहते हैं, मैं अपनी लड़की के साथ रहता हूं. एंड कल क्रिसमस डे है, आप मेरे दोस्त रहे हैं, आज आपका दिन खराब चल रहा है, आपकी हालत ये हो गई, आप इतने गरीब हो गए हैं, आप मेरे घर चलिए और वहां पर क्रिसमस स्पेंड करिए, सेलिब्रेट करिए हमारे और लड़की के साथ, खाना खाइए, चल के सेवा का मौका. बट द पेडलर वाज द मैन ही थॉट, उसने तो सोचा कि मैं तो चोर हूं, मैं तो उसका दोस्त हूं ही नहीं, ये पहचान ही नहीं पा रहा. तो गोइंग टू द मैनर्स हाउस felt him like the lion's den. उसने सोचा कि इस मालिक के, आयरन मास्टर के घर पे जाना शेर की मान में जाने जैसा हो. He would snatch his 30 kroners. उसने सोचा उसके 30 रुपए भी वो छीन लेगा, 30 kroners, और handed him over to the police, और उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देगा. He was afraid. He refused. Oh, I will not go to your home. मामा मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो अपना यही लेटूंगा, मैं केवल रात काटने के लिए आया. द आयरन मास्टर इंसिस्टेड हिम इन मेनी वेज बट ही रिफ्यूज्ड. उसको मना किया, उसको इंसिस्ट किया उसने कि चलिए चलिए, लेकिन उसने मना किया. एट लास्ट आयरन मास्टर वेंट टू हिज होम
He informed his daughter, अपनी डॉटर को इन्फॉर्म किया एडला बिलमिंसन को कि मेरा एक पुराना साथी वहां आया हुआ है मिल में और उनका टाइम बहुत खराब चल रहा है. ठीक है, इज इट रनिंग? टाइम बहुत खराब चल रहा है मेरा. ठीक है, उसका हमारे दोस्त का, इसलिए उससे मैंने कहा घर पे चलिए, ठीक है, क्रिसमस डे मनाइए, लेकिन he refused. He was afraid, he was scared, I think. Adela Bilminson told her father that she would go to make him agree. बोली पापा मैं जाऊंगी और अंकल को एग्री करके घर पे लाऊंगी. उनका वक्त खराब चल रहा है, हालत खराब है, लेकिन आपके दोस्त रहे हैं, मैं जाती हूँ. She went to the mill. She saw that the person was lying on the ground, having his hat on his face. अपना टोप अपने चेहरे पे रखे हुए सो रहा था. एडला बिलमिंसन took a valet, एक सर्वेंट भी अपने साथ ले गई, एक फर कोट ले गई उसको देने के लिए. उसने उससे रिक्वेस्ट की, You are requested to come to our house. My father came and make you and requested you to come to the home, but you refused. आपने मना कर दिया. I request you to join or celebrate Christmas Eve at our home. हमारे घर चलिए, क्रिसमस का त्योहार मनाइए, अपनी सेवा का मौका दीजिए, क्योंकि क्रिसमस में ये माना जाता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी की सेवा करना बहुत बड़ी बात है. She was very humble lady. She was not beautiful, but was generous lady. ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन बहुत सभ्य लेडी थी. जब उसने बहुत रिक्वेस्ट की, and she also assured him, उसने उसको ये भी एश्योर किया, whenever you would want to go, you would be allowed. जब भी आप हमारे घर से जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं. The peddler saw confidence on the face of Adela. He became angry by the condition of peddler. Adela thought whether he was escaped from the jail. उसने सोचा या तो ये जेल से बच के भागा है और he had stolen something. देख के लगा या तो जेल से भागा है, कुछ चुरा लिया है, इस तरह का वो रिएक्ट कर रहा था. बट शी इनवाइटेड हिम टू हर हाउस टू स्पेंड क्रिसमस ईव. एट लास्ट ही बिकेम एग्री. व्हेन ही रीच्ड द हाउस ऑफ मैनर, द आयरन मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स टू मेक हिम बाथ. कहा इसे नहलाओ, साफ करिए, शेप बनाइए, इसकी बाल काटिए, इसकी हालत सही करिए. और सबने बहुत अच्छी तरह से टब में डाल के उसको लक्स साबुन लगा के नहलाया उसको. ठीक है, शैम्पू लगाया, उसका शेप की और बढ़िया सा कोट दिया मालिक का ही नौकरों ने. और सुबह लाइट में जब वो आयरन मास्टर के सामने हॉल में आया, आयरन मास्टर बाज नोट है, उसको देखकर वो खुश नहीं हुआ. भाई he was not happy because he was not the man he thought. जब लाइट में उसने देखा, oh my God, who are you? You are not my friend, old companion. कौन हो तुम भाई? तुम तो मेरे दोस्त नहीं हो जो फौजी. उसने कहा साहब मैंने कब कहा था मैं आपका दोस्त. He never pretended to be the friend of him. उसने कहा मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था. अरे भाई आई मेड अ मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो. उसने कहा सर मैंने कहा ही नहीं था मैं आपका दोस्त हूं. फिर अब्यूज्ड हिम, उसने अब्यूज किया और उसने कहा नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द शेरिफ. शेरिफ जानते पुलिस. उसने कहा मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूं. द पेडलर रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू कॉल द पुलिस. साहब पुलिस मत बुलाओ, मेरा क्या, मैं ये कपड़े उतार दूंगा, कोई फटे कपड़े पहनूंगा, अपनी चूहेदानियां टांगूंगा और मैं यहां से मतलब भाग जाऊंगा या चल जाऊंगा. एज ही वॉज ओपनिंग द डोर टू गो, एडला बिलमिंसन के. लड़की आ गई. शी टुक हिज हैंड एंड ब्रॉट हिम
in the room. उसका हाथ पकड़ा, कमरे में ले गई. She cursed his father. उन्होंने कहा, Daddy, are you mad? He never told that he was your friend. He never pretended to be a friend of yours. But you and me both brought him in the house, and on the holy season of the Christmas day, we will make him run. उसको हम भगा देंगे यहाँ से क्या? No. कोई भी मेहमान अगर आता है तो उसको भगाया नहीं जाएगा, भले ही वो हमारा आपका दोस्त नहीं है, कोई वो नहीं है, बट उसको हम यहाँ रखें. फादर मेड हर अंडरस्टैंड, बेटी ऐसा मत करो, आप पछताओगी, इसको मत रखो, ये चोट लग रहा है. लेकिन एडला बिलमिंसन डिड नॉट लिसन एनीथिंग, कुछ नहीं सुना, उसने उसको रख लिया और शाम को खूब खाना खिलाया. अच्छा अच्छा खाना देती थी वो उसको, फिश दी, करी दी, बहुत से उसको कई डिशेस खिलाई. केवल खाता था, सोता था, खाता था, सोता था. अगले दिन एडला बिलमिंसन एंड हर फादर went to the church for the Angelus, means prayer के लिए चर्च में गए. And in the church is a general verdict. People were talking about a man who had stolen 30 kroners of the crafter. लोग बात कर रहे थे चर्च में, एक चोर है, वो अपने सीने पे चूड़ीदानी टांगे है, भिखमंगा है, भिखारी है, उसने एक किसान के 30 क्रोनर चुरा लिए, वो एक चोर है. When the iron master Adla heard this, oh my God, अरे यार मैंने चोर को रख लिया आपने हम लोगों ने. Father said to Adla, oh, I was saying, very things about that thief, and you did not mind that. आपने तो माना ही नहीं. अब चलो, जब तक हम लोग घर पहुंचेंगे, all the silver spoons will be stolen, would be stolen by. चोर है, देख लिया, ये लोग बोल रहे हैं भाई है वो. और घर पहुंचेंगे तब तक सभी चांदी की चमचे चोरी हो जाएंगी. दोनों जैसे ही घर पहुंचे, जैसे ही गाड़ी से उतरे, उन्होंने नौकर से पूछा, वेयर इज दैट स्काउंड्रेल, कहां है वो बदमाश? द सर्वेंट टोल्ड दैट ही हैड गॉन. सर्वेंट ने बताया वो तो चला गया. ओ माय गॉड. दे बोथ थॉट he would have stolen all the silver spoons. But when they entered in the house, everything was settled at its place. कुछ चोरी नहीं हुआ. Nothing was taken by the peddler. Instead, he left there a small rat trap, 30 kroners in that rat trap, and a letter for Adla Bill. एक चूड़ेदानी जो एडला को गिफ्ट में दे गया था, उसके अंदर 10 क्रोनर के 3 नोट, 30 क्रोनर्स, और एक लेटर लिख गया था. इन दैट लेटर ही रोट, क्या लिखा? ड्यू टू द हम्बलनेस, ड्यू टू द जेनरसिटी, ड्यू टू द जेंटलनेस ऑफ दैट लेडी, द हार्ट ऑफ द पेडलर वाज ट्रांसफॉर्म. उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका दिल बदल गया. किस औरत ने, इस लड़की ने मेरी बहुत कोर्ट में बहुत सेवा की है और उसने मुझे कैप्टन ही माना, कैप्टन बॉर्नस्टेल. तो आई एम लाइक द कैप्टन, मैं खुद कैप्टन की तरह ही अब रिएक्ट करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा. माई हार्ट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, अब मैं कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा. आप मेरे लिए बहुत अच्छी रही. आपका कैप्टन बॉर्नस्टेल, ये 30 क्रोनर्स उस क्राफ्टर को वापस कर दीजिएगा, ठीक है? ये गिफ्ट आपके लिए क्रिसमस ईव पे. एंड यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी, थैंक यू वेरी मच मैडम. अब मेरा दिल बदल गया, अब मैं आज से कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं अच्छा आदमी बन गया हूं, ठीक है? दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट वाज द मैन message of the school. It's my humble request to all the students to read the chapter line by line and word by word, so that you could better understand what is given in the chapter. And after completing the chapter, you are supposed to write question and answer, short question and answers, and send the pic of those question answers on my personal WhatsApp number, so that I could check that and could give you my remark. Thank you. Have a nice day. God bless you.